Recording in progress. What I was explaining you, overtone and fundamental frequency के बीच में pipe open at one end का रिलेशन ये बनेगा, और नहीं open at, यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्या, open at both the ends है ना ये, सॉरी यहाँ this is one end and नीचे open at both the ends. Frequency of nth overtone is n plus 1 into f1. f1 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. ऑलराइट, तो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी मैंने, यू कैन जस्ट नोट. नाउ वी कैन सी फर्दर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके एक दो है एनसीईआरटी बुक में, दैट वी आर गोइंग टू डू. फार्मूला याद है दोनों का. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप ओपन एट बोथ एंड इज v by 2l, और क्लोज के लिए क्लोज एट वन एंड v by 4l. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को f1 से हम डिनोट करते हैं. तो नाउ यू सी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखो जैसे ये है, वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस: पाइप A with the length L and pipe B with the length 2L. Both have two open ends. दोनों के ends open है. Which harmonic of B has the same frequency as the fundamental frequency of A? So fundamental frequency of A A is, let fundamental frequency of A is nth times of fundamental frequency of B. यही तो बोलना चाह रहा है. That is the meaning. Am I correct? Which harmonic? N will be the number of harmonics. इसका B का फर्स्ट हार्मोनिक है या सेकंड हार्मोनिक है या थर्ड हार्मोनिक है. Has the same frequency as that of fundamental frequency of A. Fundamental of A की जो fundamental frequency है, B के fundamental frequency के how many times है? That will give you number of harmonics. तो frequency दोनों open है, तो V upon 2L, और इसका N V upon, इसकी लेंथ कितनी है, 2 times of 2L. Something has gone wrong? नहीं सही है. It's okay. So V getting cancelled, 2L getting it. N is equal to 2. Therefore, second harmonic of B is equal to fundamental frequency of A. Let us see the answer. Second harmonic is the right answer. Clear? So you should be able to understand the meaning of what they want to say. Shall I explain you again? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? Which harmonic of B has the same frequency as fundamental frequency of A? So let fundamental frequency is equal to n times of the fundamental frequency of B. B का जो है n times है, तो both are open pipe, both end पर. इसकी लेंथ L दी हुई है, तो B by L. इसकी लेंथ 2L दी है, तो V by 2 into 2L हो जाएगा नीचे. तो V the speed of sound getting cancelled, 2L getting cancelled, N is equal to 2. तो मतलब इसका जो सेकंड हार्मोनिक है B का, A के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है. क्लियर? ये समझ में आया आपको? बोले इसमें कोई डाउट है आपको? लेंथ ऑफ द बी इज बिगर, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेस है,
एंड सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मोर होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज लेस, सेकेंड हार्मोनिक विल हैव द फ्रीक्वेंसी मोर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रहा है। आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Some Yes, more sir. question we'll do, but keep focusing जो जैसा इसमें लिखा है, try to follow. Only thing you have to remember the fundamental frequency का formula V/2L, यहाँ भी V/2L ही लिखा है, but length 2L is the length of this pipe, तो as it is हमने लिख दिया। इसकी लेंथ इससे कंपेयर करेंगे ट्वाइस है, तो V/2L ही we are using ओपन पाइप के लिए। क्लोज पाइप के लिए क्या यूज करेंगे? पाइप क्लोज एट वन एंड V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन ये आप अपने आप करिएगा। सॉल्व एग्जांपल है 15.5। लेट्स डू द अनसॉल्व एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बुक। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बताऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसके बाद। देखो दिस कौन सा क्वेश्चन नंबर है? लेट मी सी दिस, लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 15, very carefully you follow this question. Meter long tube open at one end with movable piston, यहाँ पे piston है which can go down and go up, at other end shows resonance with the fixed frequency source। अभी source जो है fixed frequency है, इसकी भी frequency same, इसकी भी, मतलब दोनों frequency same, fixed frequency, ठीक है। earlier जो हमने देखा था we were increasing the frequency, now we are keeping the frequency fixed, and how much it is given? 340, दोनों की 340 hertz, ठीक है। when the tube length is 25.5, ये एयर कॉलम जो है 25.5 है, और 79.3 यहाँ से यहाँ तक, ये एयर कॉलम इसका 79.3 है, ठीक है। फाइंड आउट दिस पी, अच्छा यहाँ पे मिस किया हमने, shows the resonance in this case also, in this case also, when we move the piston down, piston को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे वन इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांट टू से, अगर हमने सोर्स को फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं कर रहे, देन आल्सो वी कैन गेट द नॉर्मल मोड्स। ये फर्स्ट नॉर्मल मोड है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पिस्टन को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा दी, अगेन हमें लाउडर साउंड मिल रही है, इसको बोलेंगे हम सेकंड मोड और सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वी कैन मैनेज द फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड एंड सो ऑन बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पिस्टन, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, सॉरी, बाय स्लाइडिंग द पिस्टन, ठीक है। तो वी कैन डू थिंग्स, टू थिंग्स। यहाँ तो प्रीवियस केस में हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, लेंथ फिक्स कर दी थी सभी केसेस में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है, वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। तो both way resonance can be obtained, both way we get the normal modes of the vibration, louder sound we call it। तो यहाँ पे आपको louder sound मिलेगी, फिर louder sound मिलेगी, फिर आप नीचे जाएंगे, फिर louder sound मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। What he did, उसने पूरा पानी फिल कर दिया ऊपर, नीचे कंटेनर में रखा। नाउ लेवल विल ड्रॉप, आपको पहले साउंड सुनाई पड़ेगी, फिर जब इतना लेवल हो जाएगा फिर से साउंड सुनाई पड़ेगी, और नीचे जाएगा वाटर लेवल। He is not keeping the piston there, he is keeping that कंटेनर एंड ट्यूब, उसमें पूरा पानी भर दिया ऊपर तक, देन ही रिलीज दैट वाटर। यहाँ पे थंब से क्लोज किया है और यहाँ पे फिक्स रखा है। तो यू कैन हियर द फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड एंड थर्ड साउंड आल्सो, ठीक है। तो लेकिन ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, जस्ट लेट अस कंप्लीट द न्यूमेरिकल एंड देन सी द एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू दिस। तो ये आपका फर्स्ट मोड कितने पे मिला? 25.5 पे। सेकंड मोड 79.3 पर। तो क्या होगा सेकंड मोड में? क्या होगा, नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है और एंटी नोड है। तो इफ यू सी क्लोजली, नोड एंड नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2 का होता है। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस लेंथ, इतनी लेंथ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो व्हाट वी गेट, नोड से नोड की डिस्टेंस मिल जाएगी, λ/2 मिल जाएगी हमें।
तो लैम्डा बाई 2 मिल गई, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो लैम्डा मिल गया। v इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी फिक्स है 340, लैम्डा हमने यहाँ से निकाला डायग्राम से तो 1.0, तो ये आपको स्पीड ऑफ साउंड मिल गई। ये आपको सेटअप मिलेगा, आपको लैब में मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट दिस लैब सेटअप इन द लैब कॉल्ड रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब लैब में आप देखेंगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको शो रेजोनेंस ट्यूब का हम देख सकते हैं डायरेक्ट डायग्राम एक्सपेरिमेंट भी, अपना एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट आल्सो वी कैन सी, बट ये मैं आपको दूसरी तरीके से दिखा रहा हूँ, हाउ द वाटर लेवल चेंजेस एंड वी गेट द डिफरेंट रेजोनेंस, डिफरेंट साउंड्स, लाउडर साउंड, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट मोड्स। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली ईच पॉइंट। मैंने क्या बताया इसमें, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेवल चेंज करने से, एयर कॉलम की हाइट चेंज करने से, या पानी भर देंगे तो लैब में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैसे ऐसे आपको ड्रेन पाइप मिलेगा, उसका पानी आप ड्रेन करते जाएंगे, पहले यहाँ पे लेवल रखिए, फिर यहाँ पर लेवल रखिए, दूसरी साउंड आपको यहाँ पे मिलेगी, तीसरी भी मिल सकती है, लॉन्ग ट्यूब हुई तो। गॉट इट? बोलिए। यस सर। आपको 2 रेजोनेंस यस मिल सर। गए, दैट्स आर मार्क। यहाँ पे मीटर स्केल लगा होगा, लैब में आप देखेंगे, यू विल गेट द मीटर स्केल, रीडिंग नोट कर लीजिए। धीरे धीरे पानी का लेवल कम कीजिए, वहाँ पे वाटर लेवल होगा और पिस्टन में भी दिया, धीरे धीरे पिस्टन को नीचे स्लाइड कीजिए, तो फर्स्ट लाउडर साउंड मिलेगी, मीटर स्केल पे रीडिंग नोट कर लीजिए, सेकंड पे नोट कर लीजिए, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, वहाँ से लैम्डा मिल जाएगा आपको। और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, उस पे लिखी रहती है यहाँ पर, at its system frequency is printed there। ठीक है, are you there? यस सर। Yes, sir. So Yes, sir. this Yes, sir. is nothing but a experiment of resonance tube to get the speed of sound in the lab। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज। और एक ये क्वेश्चन भी आपका, ये क्वेश्चन वी कैन डू इट लेटर ऑन, इसको हम यहाँ चलो कर लेते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज एट वन एंड, विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज resonantly excited by 430 हर्ट्ज सोर्स। तो हमने इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं V/4L से, क्लोज एट वन एंड है, तो V/4L से हमने चेक किया, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन 340, लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर 0.2, तो दिस इज क्लोज टू द इट इज कमिंग टू 425 और यहाँ पे 430 दिया, वेरी क्लोज। तो वी कैन से फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट मोड। थोड़ा सा एंड करेक्शन रहता है, थोड़ी एरर रहती है, एक्चुअली में क्या होता है, जो 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 एंटी नोट्स बनते हैं ना, स्लाइटली अबव द सरफेस बनते हैं, अबव द एंड, यहाँ पे थोड़ा सा एंड के ऊपर बनते हैं, उसको वी कॉल इट एंड करेक्शन। तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। ये अपने कितना आ रहा है, हम लोग को एंड करेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वी आर गेटिंग 425, बट एक्चुअल में आपको 430 पे मिलेगा। तो बट वी कैन से फर्स्ट मोड इज वी आर, this is indicating the first mode of vibration or first harmonic। Will the same source be in resonance with the pipe if both ends are open? तो both ends के open होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो डबल होती कि नहीं होती? एक मिनट चलो कैलकुलेट करते हैं फिर से। तो for pipe open at both ends, F1 निकाल लेते, कितना आता है उसका, Fn is equal to V/2L only, 340 2 into 0.2
2, तो ये आपका आएगा डबल आ जाएगा, इससे 850 आ जाएगा। तो ये तो बहुत फर्स्ट मोड के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, सोर्स तो 430 है, तो आंसर होगा नो। हमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, देन ओनली रेजोनेंस विल बी ऑब्टेन्ड। गेटिंग इट नो? देयर तो क्या लिख सकते हैं? नो लिख दिया सफिशिएंट है, बट इफ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन, विल सेम सोर्स बी इन रेजोनेंस विद द पाइप? तो आंसर इज नो, इट विल नॉट बी इन रेजोनेंस, इट विल not be in resonance with source of frequency। कितनी फ्रीक्वेंसी का है? 430 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? we have to bring the higher frequency source, then only it will get the resonance with this one। क्लियर? समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। Yes, कोई sir. डाउट है? फंडा में we are Yes, sir. just testing the lowest frequency। ये lowest frequency, इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए सोर्स की। इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी? इतनी है, विच इज क्लोज टू 230। तो फर्स्ट मोड में ही हमें लाउडर साउंड मिल जाएगी हमें। देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन particularly। Can you try here itself, or you can take down in homework? Tomorrow we can do it. This can be asked in the normal school examination also। नोट कर लीजिए इसको। डायग्राम इज नॉट गिवन, जस्ट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है फॉर एक्सप्लेनेशन। Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll discuss tomorrow. You can try today. End correction अपने कोर्स में नहीं है, तो ये just we can leave it। Sir, please could you show Be- the question? Sir, please could you show the क्वेश्चन ये question? लीजिए। Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Okay. sir. Thank you, sir. तो ये एंड करेक्शन हम एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको समझा देंगे। एक वन मोर फिनोमिना कॉल्ड बीट्स इज द एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स, ये सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एग्जांपल्स हैं। अनदर इज बीट्स। बीट फिनोमिना क्या होता है? लेट मी सी। बीट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ वेव, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव when two harmonic waves। हाँ चलो, नीचे मैंने बीट फिनोमिना एक्सप्लेन किया है, उसको पहले समझते हैं क्या यूजेस है उसके। जैसे स्टैंडिंग वेव्स आर यूज्ड in musical instruments, beat phenomena is also used in the musical instruments also, and some other applications are there। होता क्या है beats में क्या होता है? when two sound sources of nearly same frequency मतलब frequency difference should not be more than 10 hertz। why it should not be more than 10 hertz? We can discuss separately। तो nearly same में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 के अंदर होना चाहिए। when sound waves of nearly same frequency superimpose at any point, there are regular rise and fall of the sound called waxing and waning। waxing means louder sound को waxing we call it, and minimum sound को waning we call it। wane means decreasing sound को waning बोलेंगे, wax means increasing sound। तो louder regular rise and fall,
अब द साउंड इज हर्ड. जब दो ट्यूनिंग फोर्क को आप, सपोज वन इज हैविंग 100 हर्ट्ज, अदर इज हैविंग 105 हर्ट्ज, इनको एक साथ साउंड करो आप, तो आपको वेवरिंग साउंड सुनाई पड़ेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, थर्ड साउंड सुनाई पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड बीट्स. तो it is used by the artist to tune their musical instruments. They tune them till no beats are heard. मतलब अपने दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ले आएंगे, या फिर तो सेम फ्रीक्वेंसी पे ले आएंगे, तो फिर ये अप राइज एंड फॉल साउंड जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिस साउंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ऑर्केस्ट्रा, एक्स्ट्रा साउंड इज नॉट रिक्वायर्ड, so they will tune it to the same frequency. One can increase the frequency, or other can decrease, or they can change the frequency to the very large. मैंने बोला 10 hertz. 10 hertz का एक होता है, उससे ज्यादा अगर हो गया ना तो human beings cannot hear. Human beings cannot distinguish the fast changing sound. 10 hertz का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड जो है 0.1 सेकेंड. अगर कोई पल्स, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है ना, तो टाइम इंटरवल कितना होगा? 1/10. फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, तो 0.1 सेकेंड. तो 0.1 सेकेंड के अंदर कोई साउंड आ जाती है, नेक्स्ट साउंड वेव कम्स, तो आवर ईयर्स कैनॉट डिस्टिंग्विश इट. एक को जो सुनाई पड़ता है, सेकेंड पल्स 0.1 सेकेंड के बाद आती है, तो then only we can hear the echo. So therefore I was telling you 10 frequency difference जो है 10 hertz के अंदर होगा, then only we can make out this louder, ये जो regular rise and fall. If frequency difference is more, we cannot, human beings cannot distinguish it. तो beat क्या है? It is the regular rise and fall of the sound when two sources of nearly equal frequency superimpose each other or interfere each other. समझ में आ गया? तो one of the example is to set the musical orchestra. Another use is to find, another use इसका क्या है? To find the frequency of the unknown tuning fork. To find unknown frequency, to find unknown frequency of tuning fork. Suppose आपके पास tuning fork है और उसकी frequency printed नहीं है उसके ऊपर, तो you can find out with the help of tuning fork of known frequency. So that also, and also it is used to determine the poisonous gases inside the mines. Many uses are there. So we can again see how the beat is produced. Theory part we can see tomorrow, but we can see the example again. ट्यूनिंग फोर्क हो सकते हैं, दो ट्यूनिंग फोर्क आप ले सकते हैं, या फिर दो पाइप ले सकते हैं. पाइप में भी हमने देखा अभी, दे हैव द उनकी अकॉर्डिंग टू लेंथ देयर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर देयर एंड आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज देयर. दो पाइप आल्सो दे कैन शो यू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. टू ट्यूनिंग फोर्क कैन शो यू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. ये बताइए, स्पीड ऑफ साउंड हम चेंज कर सकते हैं क्या एक पाइप के अंदर? इन वन ऑफ द पाइप स्पीड ऑफ साउंड इज सेम, अदर पाइप के अंदर स्पीड ऑफ साउंड चेंज करनी है, हॉलो पाइप के अंदर. हाउ कैन वी डू दैट? बाय हीटिंग इट. हीट करने से क्या, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर. तो अभी वो एक्सपेरिमेंट में अब देखेंगे, वन ऑफ द पाइप ही विल हीट, साइंटिस्ट विल हीट, तो बीट फिनोमेना में सुनाई पड़ेगी. बोथ आर ऑफ सेम लेंथ मींस सेम फ्रीक्वेंसी होगी उनकी, है ना. तो वी कैन, अच्छा इसको हम हीट से भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, यू नो, आइदर bringing the tuning fork, vibrating tuning fork closer, or heating the pipe. We can excite them by heat, we can excite them by the mechanical, that is with the help of tuning fork. Heat करने से भी उसमें sound आती है, you know, pipe, they are excited by the heat energy, or they are excited by the mechanical energy of vibrating fork. So let's see now. देखते एक्सपेरिमेंट, देन विल क्लोज इट. थियरी पार्ट विल सी टुमारो. ठीक है, तो पहले तो हम वो पाइप का जो आज हमने पढ़ा ना, फिर से देखते हैं उनका. क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप. एक तो हमने आई थिंक ये देखा था, इसका जस्ट लेट मी शो यू. ओके,
Just I have to put up the recording file. एक minute, just hold on. Screen has gone. Yes, sir. Okay, just let me bring back this. Okay. Let me switch off the recording first because they are all copyrights.